Long ago, elephants did not have trunks. They had short, round noses. At that time, a very little elephant lived with his family in Africa. The little elephant asked questions about everything. Aunt Ostrich, why do your tail feathers grow this way? Oh, little elephant, go on your way. Uncle Giraffe, why do you have spots? What a silly question, young elephant. What does the crocodile eat for dinner? You ask too many questions. Go to the river and find out for yourself. Little Elephant had never seen a crocodile before, but off he went to find one. Just as Little Elephant got to the river, he tripped over a log, but the log turned out to be the Willy Crocodile himself. Excuse me, have you seen a crocodile around here? I am a crocodile. What do you want? Really, I have been looking for you. Will you please tell me what you eat for dinner? Come here, little one. I'll whisper the answer in your ear. Little Elephant put his head near Crocodile's large toothy mouth, and Crocodile grabbed Little Elephant by his nose. I think I'll eat a little elephant for dinner today. Ow! Let go! That hurts! A snake heard Little Elephant holler. He stopped to see what the matter was. Well, little elephant, I see you have gotten yourself into trouble. Pull back hard, or Crocodile will drag you into the river and eat you. Little Elephant pulled back as hard as he could. He pulled so hard that his nose began to stretch. The harder he pulled, the longer his nose became. Pull, little elephant, pull. Crocodile pulled hard on Little Elephant's nose. Little Elephant and Snake pulled back. Together, Snake and Little Elephant were stronger than Crocodile. Finally, Crocodile let go. Little Elephant was saved from Crocodile. But his nose was now 5 feet long. Thank you, Snake. You saved my life. Now, I will sit here for a while and wait for my nose to shrink. But Little Elephant's nose did not shrink. Crocodile had pulled it into a long trunk. At first, Little Elephant was sad. But soon, he found out many ways to use his new nose. Wow! That fly on my shoulder flew away when I hit it with my trunk. You could not have done that with a short nose. Look, I can eat this big bunch of grass without bending down. Watch me scoop up this cool mud and plop it on my head. You could not have done that with a short nose. Little Elephant went home happily, swinging his new trunk. Where did you get that long nose? I got it from Crocodile. He gave it to me to keep. I don't like it much. You don't look like yourself, son. You look really strange. My new trunk might look strange, but please do not be fooled. From picking fruit to keeping cool, my trunk's a very useful tool. When they saw how useful Little Elephant's trunk was, all the elephants wanted one. One by one, they went to the river to get a new nose from Crocodile. And that is why, today, all elephants have trunks instead of short, round noses. A very good morning, second class students. This is your English class and it's chapter number 8, The Elephant's Nose.
हाथी की नाक। फास्ट टू फास्ट ओपन योर इंग्लिश स्टूडेंट्स बुक। चैप्टर नंबर 8 द एलिफेंट्स नोज। एक छोटे से हाथी के बच्चे की कहानी है और उसकी नाक की। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग बहुत पसंद करोगे। Let's go. Giraffe has long neck. This is a special feature in giraffe. Now match the names of these animals to their special features. बेटा एनिमल्स में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, मीन्स कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट इनको होता है जो उनके ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये स्पेशल फीचर होती है जो किसी किसी जानवर में ही पाई जाती है। जैसे टर्टल के पास शेल होता है, हेजहॉग के पास नीडल्स होती हैं, कैमल के पास हम्प होता है जिसमें वो पानी स्टोर करके रखता है, फिश के पास गिल्स होती हैं जिनके थ्रू वो सांस लेती है, क्रैब के पास क्लॉज होते हैं, कैंगरू के पास पाउच होता है। ठीक है, ये स्पेशल फीचर्स हैं जो स्पेशली इन्हीं एनिमल्स के पास पाई जाती हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें हम घर में रखते हैं, और घर में रखते हैं इन द सेंस घर में हम लोग उन्हें पालते हैं ताकि इन रिटर्न वो जानवर भी हमें कुछ ना कुछ दें। जैसे गाय, भैंस या बकरी हो गई, तो उसे हम पालते हैं और बदले में वो हमें दूध देती हैं। दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, जो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ देते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह ही पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कैट हो गई, डॉग हो गया। इन्हें हम शौकिया रखते हैं लेकिन इन रिटर्न ये जानवर हमें कुछ नहीं देते। तो पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में यही डिफरेंस है। सेकंड, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, जंगल में ही ये लोग अपना खाना ढूंढते हैं, रहते हैं, सरवाइव करते हैं। यूज ऑफ वाज एंड वर करेक्टली इन सेंटेंसेस में हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे। जो पास्ट टेंस होता है, जो बात हो चुकी है, बीत चुकी है, वहाँ पर हम वाज वर का यूज़ करते हैं। हैज़, हैव का यूज़ करना भी सीखेंगे। से, CKNGNKPH साउंड्स करेक्टली। चक, नग, नक, फ, ये साउंड्स हम लोग करेक्टली लिखेंगे। नर्सरी क्लास में भी आप लोगों ने ये सब पढ़ा होता है साउंड वर्ड्स। यहाँ पर आकर हम फिर से रिवीजन एक बार करेंगे। लिसन टू ऑल द एंड कंप्लीट अ कन्वर्सेशन। ठीक है, एक स्टोरी आपको और भी सुनाई जाएगी और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। राइट डायलॉग्स यूजिंग गिवन वर्ड्स। बातें जब हम करते हैं तो कैसे, कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनसे डायलॉग्स कहते हैं, तो वो भी बनाना सीखेंगे। बिग आइडिया, सम बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प एनिमल्स इन देयर एवरीडे लाइव्स मेक्स देम स्पेशल। कुछ एक जानवर ऐसे होते हैं जिनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी आप लोगों को समझाया, और ये जो होते हैं उन एनिमल्स को, उन जानवरों को स्पेशल बनाते हैं। जैसे इस स्टोरी में हम एलिफेंट की बात करेंगे तो उसका भी एक स्पेशल फीचर है, उसकी लंबी सी नाक। लेकिन क्या वो हमेशा से ही लंबी थी? ये चलिए पता करते हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल एलिफेंट हु आस्क्ड मेनी क्वेश्चन। छोटा सा हाथी का बच्चा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, सबको परेशान करता है जंगल में। लॉन्ग एगो एलिफेंट्स डिड नॉट हैव ट्रंक्स। बहुत टाइम पहले हाथियों की लंबी सी सूंड नहीं थी, लंबी सी नाक नहीं थी। दे हैड शॉर्ट राउंड नोज। उनके भी आपके जैसे छोटी सी गोलमोल सी नाक होती थी। पिक में आप देख सकते हो, अलग ही हाथी हैं छोटी सी नाक वाले। एट दैट टाइम अ वेरी लिटिल एलिफेंट लिव्ड विद हिज फैमिली इन अफ्रीका। एक एलिफेंट है जो अपने परिवार के साथ रहता था। कहाँ? अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगलों में। द लिटिल एलिफेंट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग। और वो हर वक्त क्वेश्चंस ही पूछता रहता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। मीन्स सारा दिन क्वेश्चन ही पूछता रहता था, जो मिल जाए उससे क्वेश्चन ही पूछता था। याद रखना, छोटा सा हाथी है और अफ्रीका के जंगलों में अपने परिवार के साथ रहता है।
और उसकी आदत है सारा दिन क्वेश्चंस पूछते रहना। छोटी सी उसकी नाक है। लिटिल एलिफेंट, आंट ऑस्ट्रिच, व्हाई डू योर टेल फेदर्स ग्रो दिस वे? अब आंटी जो उसकी ऑस्ट्रिच है उसे परेशान कर रहा है जा करके, आपकी पूंछ ऐसी क्यों है? ये जो पंख हैं ये इस तरीके से क्यों उगे हुए हैं? आंट ऑस्ट्रिच, ओ लिटिल एलिफेंट, गो ऑन योर वे। आंटी ऑस्ट्रिच इरिटेट हो गई हैं। छोटे हाथी, चुपचाप अपने रास्ते से निकल जाओ, अपना काम करो। लिटिल एलिफेंट, अंकल जिराफ, व्हाई डू यू हैव स्पॉट्स? अब जाके ऑस्ट्रिच ने पीछा छुड़वाया तो चला गया जिराफ के पास। जिराफ, अंकल आपके ऊपर इतने ये धब्बे धब्बे से क्या हैं? अंकल जिराफ, व्हाट अ सिली क्वेश्चन यंग एलिफेंट, ये क्या बात पूछ रहे हो एलिफेंट? अब ये धब्बे उसने थोड़े ना लगाए, वो तो भगवान जी ने लगा के भेजे हैं उसे। लिटिल एलिफेंट, व्हाट डज द क्रोकोडाइल ईट फॉर डिनर? अब एक पक्षी के पास एलिफेंट चला गया है और उससे पूछता है कि ये जो मगरमच्छ होता है ये रात को डिनर में क्या खाता है भाई? तो बर्ड जो था उसने क्या आंसर दिया? यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, गो टू द रिवर एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। भाई तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हो छोटे हाथी, नदी पे चले जाओ और वहां जाकर मगरमच्छ से ही पूछ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा देखते हैं। लिटिल एलिफेंट हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल बिफोर बट ऑफ ही वेंट टू फाइंड वन। अब जो हमारा एलिफेंट है काफ़ी क्यूरियस बच्चा है, उसे तो जो पता करना है वो पता करना ही है, तो बेचारा चला जाता है नदी पे। और पहले कभी उसने मगरमच्छ को देख भी नहीं रखा, क्रोकोडाइल को देख भी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है कि चलो आज मगरमच्छ को देख भी लेंगे और उससे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि वो डिनर में क्या खाएगा। जस्ट एज लिटिल एलिफेंट गॉट टू द रिवर, ठंग, ही ट्रिप्ड ओवर अ लॉग। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, ठक की आवाज आई और वो एक लकड़ी के ऊपर गिर पड़ा। लॉग मीन्स लकड़ी का जो ठेला होता है। बट द लॉग टर्न्ड आउट टू बी द विली क्रोकोडाइल हिमसेल्फ। लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो तो चालाक, विली मीन्स चालाक, क्रोकोडाइल मगरमच्छ था। लिटिल एलिफेंट, एक्सक्यूज मी, हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल अराउंड हियर? छोटे हाथी ने पूछा, माफ़ कीजिए, क्या मुझे बताएंगे आपने कहीं मगरमच्छ देखा है? अब छोटा हाथी मगरमच्छ से ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ठीक उसके ऊपर गिर भी पड़ा है। क्रोकोडाइल, आई एम अ क्रोकोडाइल, व्हाट डू यू वांट? क्रोकोडाइल ने जवाब दे दिया, मैं ही हूँ क्रोकोडाइल, मैं ही हूँ मगरमच्छ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? लिटिल एलिफेंट, रियली, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट यू ईट फॉर डिनर? तो छोटे हाथी ने कहा, सच्ची में आप ही हो, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, क्या मुझे बताओगे कि आप रात को डिनर में क्या खाते हो, क्या खाओगे? क्रोकोडाइल, कम है लिटिल वन, छोटे बच्चे आ जाओ मेरे पास। मगरमच्छ ने कहा, आजा आजा मेरे पास आ जाओ। आई शिल विस्पर द आंसर इन योर ईयर, मैं आंसर तो बताऊंगा लेकिन आपके कान में। वो बहुत क्लेवर है, बहुत ज़्यादा, और छोटा हाथी उसकी बात समझ नहीं पा रहा। छोटे हाथी को मगरमच्छ ने अपने पास बुला लिया है कि मैं बताऊंगा रात को क्या खाऊंगा, लेकिन बताऊंगा सिर्फ आपके कान में। लिटिल एलिफेंट पुट हिज हेड नियर क्रोकोडाइल्स लार्ज टूथी माउथ एंड चॉप। क्रोकोडाइल ग्रैब्ड लिटिल एलिफेंट बाय हिज नोज। तो छोटा हाथी बेचारा, छोटा बच्चा बातों में आ गया क्रोकोडाइल की, जो बहुत क्लेवर है, उसकी बातों में आ गया है और उसने सच्ची में अपना कान आगे कर दिया कि आप मुझे कान में बता दो आप रात को डिनर में क्या खाओगे। जैसे ही उसने कान आगे किया, उस क्लेवर क्रोकोडाइल ने अपना मुंह खोला और चॉप करके उसके नाक को पकड़ लिया, छोटे हाथी के नाक को पकड़ लिया। क्रोकोडाइल, आई थिंक आई विल ईट अ लिटिल एलिफेंट फॉर डिनर टुडे, मैं सोच रहा हूँ आज रात को मैं क्यों ना एक छोटा सा हाथी खा लूँ। लिटिल एलिफेंट, ओह लेट गो, दैट हर्ट्स,
तो छोटा हाथी बोला नहीं, छोड़ दो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, छोड़ दो। A snake heard little elephant holler. तो एक बाई चांस किस्मत अच्छी थी कि एक सांप वहाँ आ जाता है, और जो शोर छोटे हाथी ने, हॉलर मीन्स शोर, छोटे हाथी ने मचा रखा था, उस शोर को सुन करके वहाँ पर एक सांप आ जाता है। He stopped to see what the matter was. अब वो आया है तो देखेगा तो हुआ क्या है, किस बात का शोर मचा रखा है। Snake, well, little elephant, I see you have gotten yourself into trouble. मैं देख रहा हूँ छोटे हाथी, आपने मुसीबत खुद ही बुला ली है, अब आप फंस चुके हो। पुल बैक, लेकिन फिर भी चलो खींचो, जोर लगाओ, पुल बैक हार्ड, और जोर लगाओ, और क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द रिवर एंड ईट यू, वरना ये मगरमच्छ तुम्हें खींच लेगा, नदी में ले जाएगा और खा जाएगा। लिटिल एलिफेंट पुल्ड बैक एज हार्ड एज ही कुड। अब भाई जान बचानी थी तो हाथी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। He pulled so hard that his nose began to stretch. अब इतना जोर लगा दिया कि उसकी नाक जो थी वो खिंचने लग पड़ी। Stretch means लंबी होने लगी, खींच खींच करके, जैसे हम लोग रस्सी को खींचते हैं या रबड़ आप लोग खींचते हो तो स्ट्रेच करते हो तो वो लंबी होती चलती है, वैसे ही। The harder he pulled, the longer his nose became. जितना वो ज़्यादा खींचता उसकी नाक उतनी ही लंबी हो जाती। Snake, pull little elephant, pull. खींचो छोटे हाथी खींचो। क्रोकोडाइल पुल्ड हार्ड ऑन लिटिल एलिफेंट्स नोज। तो मगरमच्छ जो था वो भी खींचता गया, एलिफेंट था वो भी खींचता गया। लिटिल एलिफेंट एंड द स्नेक पुल्ड बैक। अब लिटिल एलिफेंट की हेल्प के लिए स्नेक भी आ चुका था, उसने भी हेल्प की, उसने भी उसे, यहाँ पिक में आप देख सकते हो, उसे पकड़ लिया है उसकी हेल्प के लिए, खुद उसने ट्री को पकड़ लिया है। अब एक तरफ एलिफेंट और स्नेक दोनों खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से क्रोकोडाइल खींच रहा है। टुगेदर स्नेक एंड लिटिल एलिफेंट वर स्ट्रॉन्गर देन क्रोकोडाइल। अब वो दोनों इकट्ठे थे, स्नेक और एलिफेंट, लिटिल एलिफेंट, तो वो स्ट्रॉन्गर हो गए, ज़्यादा ताकत आ गई है उनमें, क्योंकि वो दो हैं, एक और एक 11 हो चुके हैं। फाइनली क्रोकोडाइल लेट गो। तो बेचारा क्रोकोडाइल हार गया और उसने एलिफेंट को जाने दिया। लिटिल एलिफेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम क्रोकोडाइल। अब छोटा हाथी मगरमच्छ से बच चुका था, बट हिज नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। लेकिन उसकी नाक अब 5 फुट लंबी हो चुकी थी, काफ़ी लंबी हो चुकी थी। लिटिल एलिफेंट, थैंक यू स्नेक, यू सेव्ड माई लाइफ। नाउ आई विल सिट हेयर फॉर अ वाइल एंड वेट फॉर माई नोज टू श्रिंक। लिटिल एलिफेंट कहता है, धन्यवाद सांप, स्नेक, तुमने मेरी जान बचा दी है, और अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठूँगा और रेस्ट करूँगा जब तक मेरी नाक भी जो है वो सिकुड़ कर पहले जैसे हो जाएगी। बट लिटिल एलिफेंट्स नोज डिड नॉट श्रिंक। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, लेकिन छोटे हाथी की नाक जो थी वो श्रिंक हुई नहीं, सिकुड़ी नहीं। क्रोकोडाइल हैड पुल्ड इट इनटू अ लॉन्ग ट्रंक। क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उसे सूंड बना दिया था, एक लंबी सी नाक बना दिया था। एट लास्ट लिटिल एलिफेंट वॉज सैड। छोटा हाथी जो था बेचारा बड़ा उदास हो गया। बट सून ही फाउंड आउट मैनी वेज टू यूज हिज न्यू नोज। लेकिन उदासी किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होती है, अब जो भी है उसी के साथ काम चलाओ, और खुशियाँ जो होती हैं वो तो खुद ही क्रिएट करनी पड़ती हैं, कहीं से आती नहीं है। तो उसने भी सोचा कि चलो देखते हैं इस लंबी सी नाक का भी कोई यूज़ है या नहीं है। लिटिल एलिफेंट, वाओ, दैट फ्लाई ऑन माई शोल्डर फ्लू अवे व्हेन आई हिट इट विद माई ट्रंक। तो छोटे हाथी को अब लगे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होने। छोटे हाथी ने देखा, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मक्खी जो मेरे कंधे पर आकर के बैठी थी, जब मैंने इसे अपने नाक से, अपने सूंड से हिलाया तो ये उड़ गई। अरे वाह, ये भी बेनिफिट हो गया, अब मक्खियाँ उड़ाने के लिए किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। स्नेक, you could not have done with a short nose.
फार्म ने भी उसे बताया, समझाया कि हाँ, अगर नाक छोटी होती तो ऐसा नहीं होता. लिटिल एलिफेंट, लुक, I can eat this big bunch of grass without bending down. Watch me scoop up with cool mud and plop it on my head. अरे देखो, अब तो मैं अपनी ये सूंड से बहुत ज़्यादा घास उठा सकता हूँ. बंच ऑफ ग्रास मीन्स बहुत ज़्यादा घास उठा सकता हूँ और मुझे झुकने की ज़रूरत भी नहीं है. अब मैं खड़े खड़े ही घास को उठा करके मुंह में डाल सकता हूँ. वॉच मी स्कूप अप विथ कूल मड. स्कूप अप मीन्स पिकअप. अब मैं इस कीचड़ को आराम से उठा सकता हूँ. एंड प्लॉप ऑन माई हेड. प्लॉप टू ड्रॉप समथिंग और लेट समथिंग फॉल मीन्स उठा करके, अपनी सूंड से उठा करके आराम से इसे, जो कीचड़ है उसे मैं आराम से उठा सकता हूँ और अपने ऊपर फेंक सकता हूँ. और अपनी नाक, जो अपनी सूंड है, उसे भी मैं आराम से उठा करके अपने हेड पर. अब आप अपने नोज को अपने हेड तक नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन एलिफेंट अपनी नोज को उठाकर मीन्स ऐसे करके अपने हेड पे टच कर सकता है. हिप्पो, यू कुड नॉट हैव डन दैट विद अ शॉर्ट नोज. अरे हिप्पो ने भी कहा, भाई जब तुम्हारी नाक छोटी थी तब तो तुम ये सारे काम नहीं कर सकते थे. लिटिल एलिफेंट वेंट होम हैप्पीली स्विंगिंग हिज न्यू ट्रंक. अब छोटा हाथी खुश हो गया है. उसे पता चल गया है कि एक छोटी नाक की बजाय लंबी नाक उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उससे उसके ज़्यादा काम हो रहे हैं. तो वो खुशी खुशी अपनी नाक को हिलाते हुए, अपनी सूंड को हिलाते हुए अपने घर चला जाता है. लेकिन घर जाके घर वालों का रिएक्शन कुछ और होता है. फादर एलिफेंट, वेयर डिड यू गेट दैट लॉन्ग नोज. ये लंबी सी नाक कहाँ, कैसे करवा के आ गए. लिटिल एलिफेंट, आई गॉट इट फ्रॉम क्रोकोडाइल. He gave it to me to keep. यह मेरे साथ मगरमच्छ ने किया है और उसने कहा है कि अब आपकी नाक ऐसी ही रहेगी. मदर एलिफेंट, आई डोंट लाइक इट मच. यू डोंट लुक लाइक योर सेल्फ सन. अरे बच्चा, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही. आप पहले जैसे नहीं दिख रहे हो, हमारे जैसे नहीं दिख रहे हो. सिस्टर एलिफेंट, यू लुक रियली स्ट्रेंज. बिल्कुल अजीबो गरीब लग रहे हो. लिटिल एलिफेंट सिंगिंग हैप्पीली. अब वो काफ़ी खुश है और खुशी के मारे गाना गा रहा है. माई न्यू ट्रंक माइट लुक स्ट्रेंज, बट प्लीज डू नॉट बी फूल्ड. फ्रॉम पिकिंग फ्रूट्स टू कीपिंग कूल, माई ट्रंक इज वेरी यूजफुल टू. मेरी ट्रंक जो है बहुत यूज़फुल टूल है, बहुत हेल्प कर रही है मेरी, बहुत काम कर रही है मेरे. तो हो सकता है आप लोगों को ये स्ट्रेंज लग रही हो, अजीब लग रही हो, लेकिन देखो, बुद्धू मत बनो. मैं इसे आराम से फल फ्रूट भी उठा सकता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. कूल फील कर रहा हूँ जब ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा एक बड़ा अच्छा टूल, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल. अब तो मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रही है ये, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा. When they saw how useful little elephant's trunk was, all the elephants wanted one. और जैसे उन लोगों ने देखा, समझा कि कितनी यूज़फुल है भाई, वो घास भी ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा उठा के खा सकता है, आराम से पानी भर के उसे अपने ऊपर डाल सकता है, उसे झुकना नहीं पड़ रहा, रुकना नहीं पड़ रहा, आराम से सारे काम कर रहा है. तो सभी को लगा कि हाँ भाई, हमारी भी लंबी नाक होती तो अच्छा होता. One by one they went to the river to get a new nose from crocodile. बारी बारी सारे नदी पे जाने लगे और क्रोकोडाइल को रिक्वेस्ट करने लगे कि हमारी नाक भी लंबी कर दो. एंड दैट इज़ वाई, और उसी वजह से टुडे, आज तक, ऑल एलिफेंट्स हैव ट्रंक इंस्टेंट ऑफ शॉर्ट राउंड नोज. अब सारे के आज तक जितने भी हाथी हैं, सबकी एक लंबी सी सूंड होती है, उनका एक छोटा सा गोल मोल सा नाक नहीं होता है. काफ़ी अच्छी स्टोरी है बेटा. एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. एलिफेंट्स क्राई, प्ले एंड लाफ लाइक अस. यहाँ बताया गया है कि हाथी जो होता है वो सबसे बड़ा जानवर है
और हमारी तरह यह चिल्लाता है, खेलता है और हंसता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है छोटे से हाथी की, कैसे उसकी छोटी सी गोलमोल से नाक एक लंबी सी सूंड बनी। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। स्टोरी है ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आया मुझे भी पढ़ने में, पढ़ाने में। आप लोग भी इसकी रीडिंग करना मत भूलिएगा और घर पे भी सभी को ये स्टोरी सुनाइएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।